Good morning, students. Today, in this video, we will discuss about some more facts about laws of motion. First, we come to see the Newton's second law in component form. Newton's second law in component form. We know Newton's second law can be written as F equals to ma, and in vector form, it is vector F equal to m vector a, because mass is a scalar but a is acceleration. If force F can be written in its component form, then it can be written as Fxi plus Fxi cap plus Fyj cap plus Fz cap. This is force. Now, acceleration is also a vector. It can be written in the component form Axi cap plus Ayj cap plus Azk cap. Equation second. So putting values, I can write Fxi cap plus Fyj cap plus Fzk cap can be written as M Axi cap Ayj cap plus Azk cap. Distributing the multiply of M on each term, Max I cap plus May J cap plus Maz K cap. Fxi cap Fyj cap plus Fz K cap. Comparing coefficients of I cap, J cap and K cap. Fx can be written as Max, yani force in x direction is defined as the product of mass and acceleration in x direction. Fy can be written as May, yani force in y direction can be written as the product of mass and acceleration in y direction. Fz can be written as Maz. If I know the components of force and acceleration, I can find out the magnitude of force and acceleration as a whole. Now we come to the next topic, that is impulse. I से डिनोट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है. What is impulse? Impulse is the impact of a large force acting on a body for a very short time. Impulse is defined as the impact of a large force acting on a body for a very short time, and this large force is called impulsive force. Mathematically, I can be defined as Ft. It is a vector quantity whose direction is same as that of force. It is vector. SI unit of impulse is Newton second or kilogram meter second inverse. Dimensional formula is mLt की power -1. Now we come to the impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem says the impulse on a body is equal to the change in its momentum. The impulse on a body is equal to the change in its momentum. Or I can say I equal to delta P. This is impulse momentum theorem. Proof. We know F equals to MA. हमें पता है F equal to MA होता है, and putting F equal to M, A is nothing but V minus U upon T. हमें पता है M mass times V minus U upon T. Here T is time. I can say F multiplied by T equal to MV minus mu. F into T is I, or mv is P2
or mu is P1, I can write delta P. So I can prove impulse momentum theorem using this. It is very simple. Application of impulse. The importance of impulse can be highlighted in the following examples. See, a cricketer lowers his hand while taking a catch. Number 2, shock absorbers or shockers are provided in automobiles. Cushions are provided in car seats. Electronic items or glasswares are packed with thermocol or straw or with sponge. Number 5, a batsman or a wicket keeper or a goalkeeper wears different kind of pad. ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको सिंपल एक ही तरह से देने. Let us first understand. When a cricketer tries to stop a ball, then ball's momentum will change from maximum to zero in a span of time t. So suppose ball is coming with velocity v and here its velocity is going to be zero, यानी momentum is changing from p to zero, यानी डेल्टा p जो है हमारे पास p के इक्वल है. p से जीरो तक ये मोमेंटम हमने चेंज किया है. एंड सपोज इन दिस इवेंट टाइम t इज टेकन, तो हमें पता I इक्वल टू होता है डेल्टा p, बट I इज व्हाट f इनटू t एंड दैट इज व्हाट डेल्टा p. यानी वी कैन से फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द हैंड्स ऑफ क्रिकेटर विल बी डेल्टा p अपॉन t, यानी चेंज इन मोमेंटम divided by time. If reaction time is small, then force will be large. If reaction time is large, then force will be small. In the 5 cases we have discussed, we will see that the action is being done to reduce the reaction time. When ball comes and hits the hand of cricketer, if cricketer just without moving his hand stops the ball, so it will take fraction of second to stop, and hence it will exert immense force that may be enough to break his bones. But if cricketer lowers his hand, जैसे ही बॉल उसके हाथ पे लगता है वो अपने हाथों को पीछे खींचना शुरू कर देता है. तो बॉल टेक सपोज इन फर्स्ट केस इट टेक 1 सेकेंड एंड इन द सेकेंड केस इट टेक 10 सेकेंड. उसने अपने हाथों को 10 सेकेंड तक पीछे खींचा. इंप्लाइज दैट द क्रिकेटर रिड्यूसेस द फोर्स बाय 10 टाइम्स. तो याद रखें, जब क्रिकेटर के हाथ पर बॉल लगती है तो जैसे ही वो उसको कैच करता है, अगर उसने उसको तुरंत से रोक लिया तो रिएक्शन टाइम कम होगा और बॉल बहुत लार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन द हैंड्स ऑफ क्रिकेटर. जब क्रिकेटर ने अपने हाथों को पीछे खींचा तो बॉल को रुकने में कुछ टाइम लगता है, यानी उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, उसका स्टॉप टाइम बढ़ जाता है. स्टॉपिंग टाइम बढ़ा है तो इसका मतलब वो फोर्स को रिड्यूस करेगा बाय द सेम प्रोपोर्शन, और फोर्स कम हो जाएगा तो उसके हाथों में ज्यादा चोट नहीं लगेगी. तो अब आपसे पूछा जाता why a cricketer lowers his hand while taking a catch, so your answer is going to be this is done to avoid the injury by increasing reaction time. तो यहां पर इंजरी को कम करता है by increasing reaction time. तो जितने भी 5 क्वेश्चन है सभी के आंसर को मैं एक सिंगल लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं. इन सब का जो आंसर है वो आपको मैंने बता दिया. क्या कर रहे हैं हम, मोमेंटम बॉल का या जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं उस मोमेंटम को हम चेंज करते हैं, और मोमेंटम चेंज का जो टाइम होता है अगर वो कम होता है तो फिर फोर्स ज्यादा लगता है, और अगर रिएक्शन चेंज का मोमेंटम चेंज का टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा है, और मोमेंटम चेंज का टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाता है. तो हम कह सकते हैं दिस इज डन टू इंक्रीज रिएक्शन टाइम. रिएक्शन का मतलब यहां पर हमारा स्टॉपिंग टाइम मैं इसको कह सकता हूं. टू अवॉइड रिएक्शन टाइम सो टू रिड्यूस द फोर्स, टू रिड्यूस impulsive force and hence injury oblique breakage may be avoided. See in the second example,
सोकर्स आर प्रोवाइडेड। जब आप किसी कार में बैठ के जा रहे हैं, अगर उसमें सोकर्स नहीं है, बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, तो जैसे ही वो गड्ढे में पड़ेगी वो धड़ से लगेगी और आप ऊपर से गिरेंगे और एकदम से, क्योंकि उसमें सोकर है नहीं, तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करने में आप सीधे सीट पर गिरेंगे और आपको चोट लगेगी, आपको वो दर्द फील होगा, कमर में दर्द फील हो जाएगा। बट अगर सोकर है तो वो धीरे धीरे दबेगा, यानी आपकी बाइक का पहिया गड्ढे में भी गिरेगा तो पहले पहिया दबेगा, उसके बाद वो कहीं जो शॉक है वो आप तक पहुंचेगा। तो मैक्सिमम शॉक को इसने एब्जॉर्ब कर लिया बाय इंक्रीजिंग रिएक्शन टाइम, तो आप तक मिनिमम फोर्स ऑफ दैट फॉल पहुंचता है। सिमिलरली मैंने कहा कुशन्स आर प्रोवाइडेड इन द कार सीट्स, इसका भी पर्पस वही है। कुछ जो शॉक है जो गड्ढे से आपको मिला है उसको शॉकर ने एब्जॉर्ब कर लिया और बचा हुआ उसने सीट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है, आप जर्क फ्री जर्नी करते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ग्लासवेयर्स आर पैक्ड विद थर्मोकोल, स्ट्रॉ और स्पंज। ग्लासवेयर्स या थर्मोकोल ग्लासवेयर्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टीवी, फ्रिज, ये सब काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं और जब इनकी पैकिंग की जाती है तो ये ओवर 1000 किलोमीटर और पता नहीं कहां से चल के कहां तक कहां बनते हैं और कहां पहुंचते हैं। बट अगर इनको थर्मोकोल के साथ हमने पैक किया है तो थर्मोकोल की हैवी पैकिंग होती है, जब इस बॉक्स को कहीं गिराया भी जाता है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और इनमें टूट फूट को अवॉइड करता है। सिमिलरली बैट्समैन वियर्स द डिफरेंट काइंड ऑफ पैड्स। बैट्समैन अलग अलग तरह के पैड्स पहनता है टू अवॉइड एनी इंजरी। विकेट कीपर भी यही करता है, अगर बॉलर की बॉल बहुत फास्ट आई और बैट से मिस करके अगर उसके पैर पे लगती है, अगर उसने पैड नहीं पहना तो इतनी तेज आती है, बॉल का रिएक्शन टाइम इतना कम होगा, हड्डी पे टकराएगी और वो हड्डी को तोड़ सकती है। बट पैड पे लगने के बाद इट टेक्स सम टाइम टू कम टू द रेस्ट एंड हेंस रिएक्शन टाइम इंक्रीज्ड और उसके पैर पर लगने वाला जो इंपल्सिव फोर्स है वो घट जाता है, उसको इंजरी होने की चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंपल्स, हमें पता है impulse is the product of force and time, I equal to F into T, वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने इसको ले लिया है। बट जब मैं ग्राफ खींचता हूं, while drawing the graph, अगर मैं ग्राफ फोर्स और टाइम के बीच में खींचता हूं तो फोर्स और टाइम का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो किसी टाइम t1 से फोर्स की वैल्यू अगर मैं F1 ले लूं और दूसरे पॉइंट टाइम t2 पर फोर्स की वैल्यू में F2 ले लूं तो फिर इंपल्स ड्यूरिंग दिस इवेंट विल बी व्हाट? दिस एरिया विल बी द वैल्यू ऑफ इंपल्स। तो impulse can be calculated by the by area of FT graph। impulse जो है फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके लिया जा सकता है फॉर वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स आपका वेरिएबल है तो फिर I कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ F dt t1 से t2 तक। यही है आपका इंटीग्रेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंपल्स, F dt फोर्स टाइम्स, अगर वेरिएबल फोर्स आपके पास दिया हुआ है तो टाइम के साथ आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इंपल्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द types of forces according to a system. Forces may be of two types. Number one, internal force. Number two, external force. What are internal force? The force that is exerted by any one part of system onto the other part of the same system. यानी अगर from within the system, from within the body ये force exert हो रहा है एक part से दूसरे part पर, तो such a force is called internal force. Important thing to note about the internal forces. Internal forces always exist in pair and hence cancel each other. Internal force हमेशा पेयर में होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर इंटरनल फोर्स ने आपस में कैंसिल कर दिया तो देयर इज नो नेट इंपैक्ट ऑफ दीज फोर्सेस रिमेन ऑन द सिस्टम
Hence these force do not contribute anything to the motion. सिस्टम की मोशन में इंटरनल फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन निल होता है, दे कंट्रीब्यूट नथिंग टू द मोशन. नाउ द एक्सटर्नल फोर्स, इफ a force is exerted on any one part of the system from some external agent, outside agent, then such a force is called external force. And important thing to note, unbalanced internal forces are responsible for the motion of body. किसी भी बॉडी में जो मोशन होगा उसकी इनिशियल स्टेट में चेंज होगा या जो भी स्टेट चेंज है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही मोशंस इनिशिएट होते हैं. सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम? ये टर्म सिस्टम ऊपर कई बार आ चुका है. सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ बॉडीज दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर इन सम रिस्पेक्ट. किसी एक तरह से अगर कोई सिस्टम ऑफ बॉडीज या सिस्टम ऑफ कपल ऑफ पार्टिकल्स और पेयर ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कनेक्टेड है तो दिस इज कॉल्ड system. Now the term comes isolated system. Such a system is called an isolated system at which no external force act. अगर बाहर से लगने वाला फोर्स सिस्टम पर जीरो हो तो इस सिस्टम को मैं आइसोलेटेड सिस्टम कहूंगा. इंपॉर्टेंट चीज, आइसोलेटेड सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है. तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. दैट इज इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन द मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन फाइंड आउट, हमें पता है F इक्वल टू dp by dt, यानी फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम dp by dt. But as given F is zero, external force तो जीरो है, बाहर से लगा ही फोर्स, तो dp upon dt will be zero. और हमें पता है dt तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता, ना तो जीरो हो सकता ना इनफाइनाइट हो सकता, दोनों ही तरफ dt को हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो टू मेक द होल फैक्टर जीरो dp शुड बी जीरो. और अगर dp जीरो है तो हमें पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. सो p इज सेड टू बी कांस्टेंट. यानी मैं कह सकता हूं अगर सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ n पार्टिकल्स देन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन अप टू मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल शुड बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम p एंड दैट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट. पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होने वाला है. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Some practical applications of conservation of linear momentum. The first practical application is seen very obviously in recoiling of gun. Recoiling of gun. When a bullet is fired from a gun moves in the opposite direction. This phenomenon is called recoiling of gun, and the velocity acquired by the bullet is called its muzzle velocity, and velocity acquired by the gun is called its recoil velocity. Let a gun of mass mg is firing a bullet of mass mb. Let vb be the muzzle velocity of bullet and vg be the recoil velocity of gun. Then initial momentum, यानी momentum before firing. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बुलेट के लिए. बुलेट का इनिशियल मोमेंटम mb इंटू ub इक्वल टू जीरो, क्योंकि बुलेट इनिशियली वॉज फील्ड इन द गन और इनिशियल मोमेंट जो वेलोसिटी थी बुलेट की वो जीरो थी. गन की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ गन इज mg एंड ug, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज आल्सो जीरो क्योंकि ug भी जीरो है. तो इनिशियली जब बुलेट इसमें हमने फीड किया हुआ था, बुलेट गन के अंदर था ना, तो गन मूव कर रहा था बिफोर फायरिंग और ना ही बुलेट मूव कर रहा था, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो था. दैट्स व्हाई इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ, तो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम PI कितना आया, PIB प्लस PIG. इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, और आई कैन से इट कम्स जीरो. इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने कहा PIG PIB और इसको मैंने कहा PIG.
इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टोटल सिस्टम इज 0. फाइनली फाइनल मोमेंटम यानी मोमेंटम आफ्टर फायरिंग. आफ्टर फायरिंग क्या होगा हमें पता है. आफ्टर फायरिंग जो बुलेट ने स्पीड एक्वायर की वो थी वीबी, और गन ने जो स्पीड एक्वायर की वो थी, तो मैं कह सकता हूं पी एफ बी, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, दैट आई कॉल एम बी वी बी. फाइनल मोमेंटम ऑफ गन पी एफ जी, दैट आई कॉल एम जी वी जी. और यहां से हम कह सकते हैं नेट फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल टू क्या, पी एफ बी प्लस पी एफ जी, एंड दिस इज व्हाट एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी. यानी फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल्स टू एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी. इक्वेशन नंबर सेकेंड. Since gun and bullet makes an internal system, an isolated system, so since gun and bullet both make an isolated system, so we can say initial momentum should be equal to final momentum. Momentum should be conserved, and in such a case, initial momentum was 0, final momentum was what? MBVB plus MGVG, or I can say MGVG should be equal to minus MBVB, and VG, that we call recoil speed of gun, equal to minus MBVB divided by mg, mass of gun. So from here we can say नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट गन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहां से मैं कह सकता हूं नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट गन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट. There comes a question. Why the guns are made heavier while the bullet are quite lighter? एक 50 ग्राम 100 ग्राम की बुलेट को फायर करने के लिए मैं 15 किलो 20 किलो की एक गन बनाता हूं. क्यों? बिकॉज जितना मास ऑफ गन ज्यादा होगा उतनी उसकी रिकॉइल स्पीड कम होगी. तो रिकॉइल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. तो हेवियर गन्स हैव लेसर रिकॉइलिंग एंड the lighter guns have larger recoil velocity. So recoiling of gun is more if it is lighter. The recoiling of gun will be less if it is heavier, provided mass of bullet is same. अगर mass of bullet बढ़ गया तो जितना heavier bullet होगा उतनी recoil velocity ज्यादा होगी, जितना recoil lighter bullet होगा उतनी recoil velocity कम होगी. So this is the reason bullets are kept lighter and guns are made heavier to minimize the recoil velocity of the gun. So recoiling of gun is one of the excellent example of law of conservation of momentum. Second example we will see the jumping of a person from a boat. When we jump off a boat, boat moves in opposite direction just because of the law of conservation of momentum. When we gain forward momentum, the boat gains backward momentum. So to minimize the momentum or to keep the momentum zero, both will take opposite momentum. Next, holding of a hose pipe by a fireman is very difficult. When some fireman is holding a pipe, it is difficult to hold the pipe easily, because when water gushes out with a rapid speed from the pipe, it gains forward momentum, and hence to keep the initial momentum zero, the fireman has to apply large force because it needs to take a backward momentum. Initially जब तक पानी नहीं आ रहा था होज से
होज जो एक मोटे पाइप को हम कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम 0 था, अभी एकदम से उससे बहुत लार्ज अमाउंट में पानी आना शुरू हो गया, बहुत विगोरस स्पीड से। तो एक तो मास ऑफ वाटर, दूसरे स्पीड ज्यादा, तो वाटर गेन्स फॉरवर्ड मोमेंटम. So to keep final momentum 0 as the initial momentum in wake of conservation of momentum, the hose takes negative momentum or backward momentum. It moves backward to apply large amount of force. So it is difficult for a fireman to hold the hose of gushing water. So these were few examples that are significant in case of law of conservation of linear momentum. So this is all about today's class. Thank you and thank you for watching. In the next class we will study about some more facts. Have a good day.